So from this video we are going to start our new chapter, that is quantum chemistry. So let's start with an introductory portions of this quantum chemistry, because quantum chemistry is most fundamental concept in all the fields. We will discover all the influences of quantum chemistry in every branch of science. So here we are starting with basic introduction. So uh, at the end of 17th century, Sir Isaac Newton invented classical mechanics, and classical mechanics can be applied to all the macroscopic system which have speed very lesser than light speed. So in our reality or in our surrounding, we see every macroscopic particle, and those have speed which is very shorter than the light speed. हम आसपास जो भी मटेरियल्स या फिर जो भी कोई भी सिस्टम अगर हम लोग आसपास अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, तो उन चीज़ों का क्या है, उन चीज़ों का स्पीड बहुत कम होता है कंपेयर टू लाइट स्पीड। एंड हम आसपास कोई मैक्रोस्कोपिक, मतलब हम लोग कोई पार्टिकल को नहीं देखते, हम लोग हमेशा बिग बॉडी या फिर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल कार, फॉर एग्जांपल you can say human also, and anything else which we observe in reality. So those systems, I mean the problems of those systems can be solved by using Newton's laws of motion and classical mechanics. But what was happened at the beginning of 20th century? It was observed that those classical law cannot be applied to microscopic particle. How was it noted? There are some phenomena which cannot be, I mean, which could not be explained by using Newton's laws of motion and classical mechanics and classical wave theory. So, to explain those phenomena which were involved to microscopic particle, क्या हुआ था 20th सेंचुरी का शुरू में ये ऑब्जर्व किया गया कि कुछ ऐसा इवेंट हो रहा है जिसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाए थे साइंटिस्ट ने, बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, आई मीन क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स। सो उन इवेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमको कोई न्यू मैकेनिक्स चाहिए, and the new mechanics was termed as quantum mechanics. So what is quantum mechanics? Quantum mechanics is nothing but, you can say briefly, the mechanics after 20th century. And what is classical mechanics? You can say in a general version, that is the mechanics before 20th century, and that is Newtonian mechanics. So कौन, मतलब जो फेनोमेना या फिर जो इवेंट्स एक्सप्लेन नहीं किया गया था, वो इवेंट्स क्या क्या था हम लोग जानेंगे डिटेल्स में, पर मैं इसको ब्रीफली यहाँ पे बताऊंगा। वो इवेंट्स था जैसे कि नंबर 1, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 2,
कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। नंबर 3 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नंबर 4 temperature dependence of heat capacity of temperature dependence on heat capacity of solid, temperature dependence on heat capacity of solid, as well as Stern Gerlach experiment। मैं इसको सेपरेट करता हूँ। ओके, स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये एंड एटसेट्रा और भी फिनोमेना है। सो ये सब फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हम लोग क्लासिकल वेव थ्योरी से, तो हमको नया मैकेनिक्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से हम ये सब फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो अब हम जानेंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स का एप्लीकेशन बस इसमें ही है। ये सब फिनोमेना, ये सब जो इवेंट्स है, बस इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को चाहिए क्वांटम मैकेनिक्स, बट दैट इज नॉट ट्रू। Here we are not dealing with quantum mechanics. Our syllabus is based on quantum chemistry. So, what is quantum chemistry? Quantum chemistry is a little bit portion of quantum mechanics. Quantum mechanics is a first one. तो quantum mechanics के मतलब quantum mechanics का एक छोटा सा पोर्शन बोल सकते हैं जिसको हम अप्लाई करके हमारा केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व कर पाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटम केमिस्ट्री। मतलब क्वांटम केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन और इट्स अ पोर्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स व्हिच इज गिवन टू सॉल्व द प्रॉब्लम व्हिच इज प्रेजेंट इन केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड क्वांटम केमिस्ट्री। अदरवाइज क्वांटम फिजिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स इज अ फर्स्ट वन। सो इन्फ्लुएंस ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री का क्या है इन्फ्लुएंस, मतलब कौन सी फील्ड पे क्वांटम केमिस्ट्री यूज होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स का फर्स्ट इन्फ्लुएंस है क्वांटम मैकेनिक्स का, बट हियर वी आर डीलिंग विद क्वांटम केमिस्ट्री। सो फर्स्ट वन इन फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट कहाँ पे यूज करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री को? थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, टू डिटरमाइन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल, to determine entropy, to determine heat capacity of gases, as well as molecular spectroscopy में यूज होता है क्वांटम केमिस्ट्री। molecular properties, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल का जियोमेट्री, उसका डाइपोल मोमेंट, उसका बैरियर टू इंटरनल रोटेशन, जैसे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं रोटेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है रोटेशनल एक एनर्जी का बैरियर होता है, मतलब यूं ही फ्रीली रोटेट नहीं कर पाते सब मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उसमें रोटेशन का एक एनर्जी पोटेंशियल बैरियर होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री, एज वेल एज टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन केमिकल रिएक्शंस। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी अगर हम लोग पढ़ेंगे उससे हम जान सकते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में क्वांटम केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, एज वेल एज काइनेटिक्स, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से मतलब ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी तो काइनेटिक्स में ही होता है। बॉन्डिंग इन सॉलिड, सॉलिड स्टेट फिजिक्स हम लोग नाम सुने हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या फिर सॉलिड स्टेट में बॉन्डिंग कैसा होता है वो हम जान सकते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के माध्यम से, एटसेट्रा, और भी इसका इम्प्लीकेशन है। नंबर 2, ऑर्गेनिक केमिस्ट कहाँ पे यूज करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट यूजेस क्वांटम मैकेनिक्स टू एस्टिमेट द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एक ही मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट फॉर्म्स है, तो उनमें से किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो हम निकाल सकते हैं क्वांटम केमिस्ट्री के माध्यम से। बेसिकली दैट इज इन्वॉल्व इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री।
नेक्स्ट वन इज टू इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन मैकेनिज्म। कौन सा पाथवे से रिएक्शन अगर जाएगा जिससे उसका एनर्जी कम लगेगा। मतलब हमेशा रिएक्शंस उसी माध्यम से जाएगा जहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम लगता है। मतलब लोअर एनर्जी पाथवे से हमेशा रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं। मतलब टू इन्वेस्टिगेट द रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग जान सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटम केमिस्ट्री एटसेट्रा। ठीक है, इसमें पॉइंट्स मिसिंग है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आल्सो। ठीक है, एनीवे थर्ड वन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट यूजेस LFT, दैट मींस लिगैंड फील्ड थ्योरी। अगर आप लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़े हैं आप लोग जान सकते हैं कि लिगैंड फील्ड थ्योरी दैट इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मेथड। ओके, सो लिगैंड फील्ड थ्योरी में क्वांटम केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। नेक्स्ट वन इज टू प्रेडिक्ट एंड एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्वांटम केमिस्ट्री इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैग्नेटिज्म या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ओके ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, आई मीन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आयंस, तो उसका ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर डिफरेंट प्रॉपर्टी जानने के लिए हम लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री आना चाहिए इन डिटेल्स में। ठीक है, सो एंड एटसेट्रा। ओके, और भी इम्प्लीकेशंस है। नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल केमिस्ट and they use spectroscopic method extensively. एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और हम जानते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन क्वांटम केमिस्ट्री। द फ्रीक्वेंसीज एंड इंटेंसिटीज ऑफ लाइन इन स्पेक्ट्रम कैन बी properly understood and interpreted only through the use of quantum mechanics. कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइन्स आते हैं उसका फ्रीक्वेंसी एंड उसका इंटेंसिटी थियोरेटिकली जानने के लिए हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स आना चाहिए। ओके, एंड द लास्ट वन इज नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैसे हम लोग जानते हैं अबाउट सेमीकंडक्टर, क्या होता है कि कोई भी बल्क मटेरियल अगर उसका डायमेंशन अगर हम लोग 1 to 100 नैनोमीटर का नीचे ले आए, फॉर एग्जांपल 100 नैनोमीटर के नीचे ले आए उसका डायमेंशन, क्या होगा उसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाता है। एंड दोस कैन बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग क्वांटम मैकेनिक्स। जैसे कि कोई बल्क मटेरियल का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या फिर कोई बल्क मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जैसा है 100 नैनोमीटर के नीचे अगर हम लोग उसको लेकर आए उसका प्रॉपर्टी पूरा चेंज हो जाएगा। तब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मटेरियल का वन डायमेंशन का साइज, आई मीन वन डायमेंशन अगर 1 to 100 नैनोमीटर के नीचे आ जाए या फिर इसका रेंज पे आ जाए, तब हम उसको एक नाम देते हैं, उसका नाम है क्वांटम वेल। जब 2 डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशंस जैसे कि x y z होता है ना, अगर ओनली x का डायमेंशन इन दिस रीजन होगा तो उसको बोलेंगे क्वांटम वेल। अगर x एंड y दोनों का डायमेंशन होगा 1 to 100 नैनोमीटर तो क्या होगा, उसका नाम देंगे हम लोग क्वांटम वेयर। बेसिकली ये सब मटेरियल साइंस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर 3 डायमेंशन जैसे x, y एंड z, तो अगर तीनों के तीनों का डायमेंशन इन दिस रीजन आ जाए उसको नाम देंगे हम लोग क्वांटम डॉट। ठीक है, तो ये सब यूज होता है मटेरियल साइंस पे एंड इन सब का एप्लीकेशंस एक्सटेंसिवली होता है, मतलब एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस है ये सब चीजों का, क्वांटम डॉट, क्वांटम वेयर एंड क्वांटम वेल। एंड सिक्स्थ इन्फ्लुएंस या फिर सिक्स्थ इम्प्लीकेशंस या फिर एप्लीकेशंस है जो है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री।
जो एक अलग सा पार्ट है, ठीक है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे. So in this video we have just introduced what is quantum chemistry and the influences of quantum chemistry. So on the next video we will go through the historical background of quantum chemistry, and we will move to our syllabus. And till then, thank you so much.